one given charge. Then we have discussed electric field. You know that it is, every charge will produce electric field. That is the region around the charge where other charge will experience force. And in electric field, at any point, the strength of the electric field is given by electric field intensity. That is force experienced by a unit positive charge placed at a given point. So you've got a formula E is equal to F upon Q. And when you derive the expression for electric intensity at a point due to point charge, obviously we'll get it as E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. Upon R square. Exactly, Q upon R square. And we have also discussed the practical way, practical method of calculating electric field. Volt per If you meter. know the potential, if you know the potential difference and the distance, right? So electric field is nothing but E is equal to V by D. E is equal to V by D, where D is the distance. For example, if there is a wire, right, with the length L, across that wire, if I apply potential difference V, then the electric field produced inside the wire, obviously it is going to be V upon L, right? V by L. Yes. Yes. Exactly, it is V upon L. Then we have discussed, see, to represent electric field, we use the concept of lines of force, and that will be electric lines of force. We have discussed what is electric lines of force, then the properties of electric lines of force, right? Then on the basis of electric lines of force, we have defined electric flux, right? Electric flux. The number of lines of force per unit area. Sorry, the number of electric Normally lines of passing force. through unit area. Yes, it is normally passing through given area will be called as electric flux, right? Yes. Number of electric lines of force normally passing through given area is called electric flux. Then we have defined Gauss theorem, right? So here, yes, as far as 12th is concerned, Gauss theorem you have studied in 11th standard, but application of Gauss theorem you're going to study in 12th standard. So can anybody tell me the statement for Gauss theorem? Total electric flux is equal to charge enclosed by the surface divided by epsilon 0. Exactly. See, when it comes to Gauss law, we know that it is the basic law in electrostatics, where after Coulomb's law, you're going to see Coulomb's law, it deals with one charge. Then at a point, if you want to find electric intensity, then you will be using Coulomb's law. But if you have got a system of charge, then obviously you are going to use Gauss law, right? So I can say Gauss law, it relates electric charge. It relates electric charge and electric field. Electric charge with the electric field. Or I can also say it relates or electric charge, electric field or electric flux. That is okay. Electric flux. Right? Now, as you told the statement for Gauss theorem, it is very simple. The total electric flux over a closed surface is equal to algebraic sum of charge enclosed by the surface divided by epsilon 0, right? So if it is in free space, you have to divide it by epsilon 0. If it is in any medium, then you have to divide it by medium, right? So I'll just write the statement here. The total electric flux over a closed surface, the total electric flux over a closed surface is equal to algebraic sum of, this is very important because charge can be added, because charge is scalar, so we cannot go for vector addition. So this algebraic sum of charge enclosed by the surface, charge
enclosed by the surface divided by but you see, if it is in free space, obviously we will divide it by epsilon zero, right? But if it Yes. is in any given medium, you will divide it by epsilon. You have to keep it in mind, right? Yes. So definitely I can write flux. If phi is total flux, I can write it as closed integral E bar dot ds bar will be equal to Q, where Q is the total enclosed charge upon epsilon zero. But don't you think you have seen this equation? Yes, sir. Yes. Now tell me, Bacha, what is phi here? Total electric flux. Total electric flux. Exactly. So here phi will be tell me, Bacha. It is total. Total electric flux through closed Total circuit. electric flux passing through normally. Yes. The total electric flux coming out of a closed surface. Closed surface. Yes. Coming out of closed surface. Okay. Now, what is, of course, this is going to be the formula for electric flux. But what is Q enclosed here? Charge. Right. Total Total charge. Total charge. Okay, Q enclosed. Tell me, Bacha, what is Q enclosed? It is the Total total charge. charge Q1 plus Q2 plus inside the Q3. closed surface. Is it okay? Yes. 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 Total charge inside the closed surface. Closed surface. And obviously this will be phi. That is total electric flux coming out of the surface. Yes. Yes. Is it clear? See, as far as 12th is concerned, you should know what is Gauss law. Derivation of Gauss law, it will not come in 11th standard. It is going to be in, sorry, it is not going to be in 12th standard. It's going to be in 11th standard, right? So here you should know the Gauss law, and derivation already it is done. So obviously we will not discuss. Is it okay, but is it everybody followed up to this much? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine. You can complete this, then we will get into application. Sir, Gaussian surface एक बार बताओ. बच्चे Gaussian surface किधर लिखा है? किधर Gaussian surface किधर भी लिखा नहीं ना? सर 11th में Gaussian surface नहीं समझाते सर. हाँ हाँ बच्चे देखो, अभी ये जब एप्लीकेशन में जाएंगे ना, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा Gaussian surface क्या है. ठीक है? Yes, अभी आप yes. समझ के लो, आपको पता नहीं है. Is it Yes, okay? sir. हाँ, Yes, sir. क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन में इजी होगा बच्चा एक्सप्लेन करने के लिए आपको. Yes, sir. हाँ. सर अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करने का ना चार्ज का. हाँ, चार्ज प्लस से तो प्लस लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है. यस सर. हाँ.
Bacha, done? Done, sir. Yes, sir. Done, sir. Okay, fine. So now we are moving towards the main part of this chapter, because this Gauss law, obviously you have studied in 11th standard. That is, using Gauss law, how to find electric intensity at a point due to system of charge. Due to system of charge. So there is an approach. So first you will study the approach. Then by means of that approach, you will find the electric intensity due to different system of charge. Now, next it is the steps involved to find electric intensity using Gauss theorem. So steps involved to find EI, that is electric intensity, due to system of charge, charges, by using Gauss theorem. Gauss's theorem. You can say Gauss law also, it is okay. Okay. But sir, now we will discuss steps, means what should be your approach, right? Now, in first, when you see, first you have to see the system of charge, right? So means whether the charge is linearly distributed, whether it is surface charge distribution, whether it is volume charge distribution, that you have to see, right? So first you have to identify the charge distribution, right? In other words, you have to describe the charge distribution, right? So in bracket, basically it is you have to identify. Is it okay, bacha? So first you have to see the situation. Charge means you have studied, right? So there can be linear charge distribution. Surface charge distribution, volume charge distribution. Right. Surface charge distribution. When I tell linear charge distribution, definitely you remember Lambda. Exactly. Right. When I say surface charge, whatever, very good, distribution, you remember sigma. Excellent. Third one. Volume charge. Rho. Exactly. Volume charge distribution. You will find rho there. So here lambda, sigma, rho. There, one is linear charge density, second is surface charge density, and the last one is volume charge density. In other words, I can say first one is charge per unit length, second is charge per unit area, last one is Charge per unit volume. It means you remember everything. Good. So once it is done, then second, what you have to do, bacha? You have to find the electric flux using Gauss theorem, because Gauss theorem says total electric flux is nothing but charge enclosed upon epsilon, epsilon zero. Yes or no? Right? Yes. Yes. So find electric flux using Gauss theorem. Gauss's theorem. Right? And whatever be the flux you will get it, that will be taken as equation number 1. Okay? That is taken as equation number 1. Is it okay, bacha? Yes. So basically what we are doing, you are finding flux is equal to Q enclosed upon epsilon 0. Right? So better I will go with the, it's up to you. First I'll write epsilon, then I'll write Q enclosed upon epsilon 0 K. Is it okay? Yes. Yes. What is K, bacha? Dielectric Silent constant. constant. Dielectric constant. Excellent, excellent. Very good, bacha. It is Q enclosed upon epsilon, Q enclosed upon epsilon 0 K, where K is dielectric constant. Or relative permeability.
Yeah, relative permittivity. सर इसको Q enclosed upon epsilon 0 epsilon r भी लिखते हैं. हाँ लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं. यस ठीक है, नो Yes. प्रॉब्लम. ठीक है, चलो आपका एक फ्लक्स का इक्वेशन मिल गया, राइट. अभी आप क्या करेंगे बच्चा, दूसरा जो है ना, देखो तुमने क्या लिखा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई बार डॉट डीएस बार इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 लिखा है ना. तो इसको Yes. ये सॉल्व करके तुमने ये लिखा, अभी तुमको ये सॉल्व करना है, राइट. बच्चा बराबर है ना. यस सर सर रिपीट और करो ये- ना. बच्चा देखो, रिपीट करो सर. हाँ देखो बच्चा, फ्लक्स इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, बराबर है ना. फ्लक्स मतलब ये Yes. भी है, ये भी है. यस तो आपने ये सॉल्व करके लिख दिया, तो आपने देखा चार्ज कितना है, तो फ्लक्स कितना होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, बराबर है. Yes. बट अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, बट इसको सॉल्व कैसा कर सकते हैं, जब आपको इंटीग्रेशन क्लोज्ड बोला है, एंड ये क्लोज्ड मतलब ऑब्वियसली आपको एक क्लोज्ड सरफेस है. Close क्या the है बच्चा, surface. इसको ही हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, राइट. क्योंकि आपको अभी ये सरफेस दिया नहीं है, आपको इमेजिन करना है. आई होप यू गेटिंग. Yes. यस मतलब चार्ज के अराउंड आपको एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करना है. वो स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, राइट. अकॉर्डिंग टू द नीड आप सेलेक्ट करेंगे. इज इट ओके. यस सर समझा. Yes sir. मतलब Yes. इसको अप्लाई करना है तो मेरे को एक क्लोज सरफेस लगेगा, तो पहला मेरे को क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा. तो थर्ड ऑब्वियसली विजुअलाइज ए गॉसियन सरफेस, राइट. एंड ऐसा विजुअलाइज करो, आपका ये जो कंडीशन है, मतलब आपको जो करना है वो इजी हो जाए, राइट. मतलब क्लोज सरफेस कैसा भी नहीं ले सकते हो आप बहुत इरेगुलर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं. मतलब आप ऐसा क्लोज सरफेस लो जो आपको इजी डील कर सकता है आंसर से, राइट. Yes. राइट. वो अब बच्चा, अभी जब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा. अभी हमारा यही है, आपको कंसिडर करना पड़ेगा या विजुअलाइज करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस को. सो विजुअलाइज ए गॉसियन सरफेस, ए गॉसियन सरफेस, राइट. सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ए क्लोज्ड सरफेस, ब्रैकेट में लिखता हूं, चलो, क्लोज्ड सरफेस. ओके, एंड जस्टिफाइड. मतलब जस्टिफाइड समझ में आता है आपको क्या है. मतलब आपने एक गॉसियन सरफेस, स्फीयर लिया तो क्यों लिया है, क्यूब लिया तो क्यों लिया है, सिलेंडर लिया तो क्यों लिया है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. इज इट ओके. Yes sir. यस राइट. आप बच्चा, आपने क्लोज सरफेस, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था ना. मतलब आपने एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस लिया है तो आपको जस्टिफिकेशन बताना पड़ेगा क्यों लिया है. इज इट ओके. Yes sir. Yes. तो अभी आपका पास जो क्लोज सरफेस चाहिए तो मिल गया, एंड उसका अंदर ही तो चार्ज है, राइट. अभी आप थर्ड, मतलब ये जो सेकंड था, क्लोज्ड इंटीग्रल ई बार डॉट, उसको सॉल्व करेंगे, राइट. सो द फोर्थ पार्ट इज with the electric field intensity, with electric field intensity, चलो मैंने मान लिया कि उसको E इस अननोन, ऑब्वियसली अननोन है वो, क्योंकि आपको वही फाइंड आउट करना है, राइट. तो आप क्या करेंगे, सिमेट्री या ज्योमेट्री को यूज करके, राइट, यूजिंग ज्योमेट्री. तो अभी जब एप्लीकेशन में जब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, राइट. यूजिंग ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर. So this we'll understand when we deal with application and symmetry, because एक particular symmetry होना जरूरी है, मतलब कुछ भी लेके आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं. Okay, of the Gaussian surface, Gaussian surface, this is important. क्या मिसिंग किया बच्चा, with electric field intensity unknown,
obtain electric flux by calculation. थोड़ा मिसिंग है तो चलो. With the electric field intensity, obviously electric field intensity तो आपको पता नहीं है, right? Is unknown. With the electric field intensity, E is unknown. Find या obtain electric flux. Electric flux by calculation. Calculation using geometry. बच्चे दिख रहा है ना? Geometry of the structure and symmetry of the Gaussian surface, right? बच्चे आपको दिख रहे हैं क्या लिखा है? Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चा मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं, देखो ये इक्वेशन 2 तो आपको मिल ही जाएगा, राइट? तो मैं आपको सेकंड इसका बात कर रहा हूं, मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार, वही तो ये भी तो फ्लक्स देता है, तो ये आपको इक्वेशन 2 देगा. इज इट ओके? Yes. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर ऑब्वियसली 2 होगा, राइट? एंड इसमें क्या होगा, फ्लक्स आपको पता है, राइट? क्योंकि आपको चार्ज पता रहेगा. इसमें खाली ई अननोन है, राइट? ई इज अननोन, राइट? Yes, sir. Yes. तो आपको ई मिल जाएगा, राइट? फिफ्थ ये करना है, दोनों को इक्वेट करना है, राइट? सो इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 and find या calculate या find electric intensity. This is the approach. Is it okay बच्चा? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फाइंड करो. बच्चा लिख लो इसको, बाद में हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे. So with the electric field intensity as unknown, obtain electric flux by calculation using geometry of structure and symmetry of Gaussian surface. Right? बच्चा लिख लो इसको. देन एक स्टेप, एक कौन सा एक एप्लीकेशन किया हम लोग ने, आपको बराबर समझ में आएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं. सर फोर्थ पॉइंट मैंने नहीं समझा सर. फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से. अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है? हम लोग ने गॉसियन सरफेस तो ले लिया ना. यस सर. तो अभी हम लोग को ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है ना, क्लोज्ड इंटीग्रल बी बार डॉट डी एस बार, उसको सॉल्व करना है. उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने गॉसियन सरफेस लिया है उसका ज्योमेट्री देखेंगे प्लस सिमेट्री देख के सॉल्व करेंगे उसको. यस सर. सर उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम होना चाहिए. नहीं नहीं, जरूरत नहीं है ना बच्चा. यस सर, समझा. राइट? देखो फ्लक्स पता है तुमको, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस है, यस सर. राइट? यस. हाँ बच्चे, अभी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स है, जरूरी है थोड़ी है कि एक्स पता रहना चाहिए. आपको Yes, कुछ sir. एक फॉर्मूला मिल जाएगा, बराबर ना? यस सर.
सर गॉसियन सरफेस रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बच्चा क्या है ये जो इक्वेशन है ना फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड है ना, तो क्या इंटीग्रेशन का वो मिडिल पे हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, बराबर है ना? तो Yes, sir. क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब तुमको इंटीग्रेशन करना है तो अल्टीमेटली तुमको एक क्लोज सरफेस का जरूरत है। तो इसके लिए इमेजिन करता है तुम चार्ज को अंदर रख के उसके अराउंड एक क्लोज सरफेस इमेजिन करता है, और वो क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं, राइट? ओके सर। उसके बाद हम लोग वो क्लोज सरफेस बनाने के बाद हम लोग वो जो पार्ट है ना क्लोज्ड इंटीग्रल ई बार डॉट डीएस बार को सॉल्व करेंगे, वो इक्वेशन वो पॉइंट नंबर 4 होगा। देन दोनों को किया 4 और 2 को इक्वेट करके ही निकालेंगे। पॉइंट नंबर 2 मतलब पॉइंट नंबर 4 दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा, पॉइंट नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, दोनों को इक्वेट किया तो ई मिल जाएगा, राइट? यस सर। बच्चे आई एम श्योर इन केस किसी को थोड़ा इसमें डाउट है, बच्चा आई एम श्योर फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग जैसे ही खत्म करेंगे तो आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, देयर विल बी नो Yes. प्रॉब्लम वंस आई फिनिश विद फर्स्ट एप्लीकेशन। सर यस यस, बोलो बच्चा। सर 4th पॉइंट में अननोन के बाद क्या लिखा है? ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय कैलकुलेशन। ये तो पता नहीं है ना आपको, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करके। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ। डन सर। बच्चा एवरीबॉडी फिनिश्ड? Yes. Yes, sir. नो Yes, सर। यस सर। कर लो बच्चा, कर लो, कंप्लीट करो, जिसका नहीं हुआ है कंप्लीट कर लो। डन सर। डन बच्चा, कोई है जिसका नहीं हुआ है? सबका हुआ, राइट? यस सर। ओके फाइन, सो मैं रब कर रहा हूं बच्चा। सो विल मूव टुवर्ड्स फर्स्ट एप्लीकेशन।
where we will find electric intensity at a point due to charged या uniformly charged spherical shell और hollow sphere. मतलब एक charged sphere का वजह से एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, ऑफ कोर्स आउटसाइड द चार्ज्ड स्फीयर, राइट. ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन होगा. बच्चा ध्यान दो. फाइन. सो फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ऑफ कोर्स ई आई लिख रहा हूं, एट ए पॉइंट outside uniformly charged. Uniformly, what do you mean by uniformly बच्चा? सब जगह चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब लैम्डा है तो सब जगह लैम्डा का वैल्यू सेम रहेगा, लाइक दैट, राइट. सो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, charged spherical shell और hollow sphere. Right. ये हमारा एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन. सो आई रिपीट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसको हम लोग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, एट ए पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर. तो फर्स्ट में एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करूंगा, राइट, जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, ऑफ कोर्स सेंटर ओ है. मान लो एक स्फेरिकल शेल है जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस आर है, एंड ऑब्वियसली ये चार्ज्ड है, राइट. तो मैं मान लेता हूं कि इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट. तो आप हॉलो है तो समझ सकते हैं कि चार्ज खाली सरफेस में है, राइट. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इसमें जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो वैल्यू है वो ले रहा हूं मैं सिग्मा. इज इट ओके बच्चा? यस Yes. फाइन. तो मतलब ऐसा कंसिडरेशन है. सो आप ये समझ के ये कर सकते हो कि देयर इज ए चार्ज्ड स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर, राइट, सेंटर ओ है एंड चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. ऐसा लिखता हूं, चलो, लेट सिग्मा बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और आपको पता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, बराबर है बच्चा? यस सर. Yes. तो अभी सोच के बताओ बच्चा, इसका रेडियस आर है तो ये स्फीयर का सरफेस एरिया क्या रहेगा बच्चा? सोच के. 4 pi r square होगा ना? 4 pi r square. Yes. राइट, ऑब्वियसली इट इज 4 pi r square होगा. बच्चा किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. No, देखो sir. मैंने क्या बोला, रेडियस आर है तो अल्टीमेटली रेडियस आर है तो उसका सर फिर से area- बताओ ना. फिर से क्या बताओ बच्चा? ये पूरा फिर से स्टार्टिंग से? नहीं सर, ये थोड़ा सा बस वो पाई का वैल्यू से. हाँ हाँ बता. देखो ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा ये यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है उसका वैल्यू है. मतलब फॉर एग्जांपल ये इतना एरिया में, यूनिट एरिया में चार्ज कितना है? सिग्मा. तो अभी एरिया 10 मीटर स्क्वायर है सपोज, तो कितना चार्ज होगा? 10 इंटू सिग्मा होगा. समझ में 10 आता है into ना? sigma. राइट. यस सर, यस सर. वैसे ही अभी खाली फर्क इतना है, मेरा ये स्फीयर का रेडियस आर है तो एरिया कितना होगा बच्चा? 4 pi r square होगा ना? 4 pi square एरिया ऑफ स्फीयर लगेगा. Pi r. एग्जैक्टली. मतलब एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, राइट, Surface area of. लगेगा सरफेस. राइट. तो उसको अभी इसका ऊपर कितना चार्ज है बोलेंगे तो क्या बोलेगा तुम? इनटू सिग्मा बोलेगा, राइट.
into sigma, yes sir, yes. मतलब Yes, इधर जो sir. 10 था इधर 4 pi r square है। अच्छा इधर तक क्लियर है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो टोटल चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल शेल, टोटल, चलो थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि गॉसियन सरफेस बना रहा है। टोटल चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल इज गिवन बाय, मतलब आप चाहे तो होल हॉलो स्फीयर लिखो, इट्स ओके। सो टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू, Q एनक्लोज लिखता हूं चाहिए तो, सो बच्चा 4 pi r स्क्वायर इनटू सिग्मा। कोई किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हो इधर तक। सर हाँ सर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया तो कर सकते हो बच्चा, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। फिर भी चार्ज को एनक्लोज तो उतना ही आएगा ना बच्चा, सर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। तो क्या फायदा बच्चा। मेरे को ये बताओ, नेट चार्ज तो 0 होगा ना, हाँ, यस सर। जीरो हो जाएगा सर। राइट। तो आप एक ही टाइप ऑफ चार्ज ले दे सकते हो, एक तो पॉजिटिव दे सकते हो, एक तो नेगेटिव दे सकते हो, बराबर है? यस सर। Yes, sir, yes. ओके फाइन, फाइन देन। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। हम लोग ने पहला ये देखा कि कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से चार्ज कितना है वो फाइंड आउट कर दिया, राइट। अभी आप सेकेंड पॉइंट देखो, ऑब्टेन द फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम। तो आपको पता है फ्लक्स के कितना मिलेगा बच्चा? Q by Q by epsilon 0। एग्जैक्टली। सो बाय गॉस थ्योरम, बच्चा इधर ही लिख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाय गॉस थ्योरम the electric flux, yeah, the net electric flux is given by, the net electric flux is given by, so obviously it is going to be Q enclosed, Q enclosed by epsilon naught. Phi चलो 5 is equal to Q enclosed upon, चलो इसको अभी बच्चे इसको मीडियम में रखेंगे हम लोग, जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। इज इट ओके? Sir, Yes. नीचे कर सकते हैं ना? मतलब ये मीडियम में है जिसका परमिटिविटी, ऑफ कोर्स देयर इज अ मीडियम नाउ, जिसका Yes, yes. परमिटिविटी एप्सिलॉन है, जिसको आप एप्सिलॉन 0 के भी लिख सकते हो। Q अच्छा ठीक है, enclosed upon epsilon 0 K। Yes. राइट। Yes, तो sir. Yes इसको sir। एप्सिलॉन लिखो या Q enclosed upon epsilon 0 K लिखो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड ऑफ कोर्स Q enclosed का बदले में ये लिखेंगे आप आगे जाके, Yes। राइट। राइट बच्चा, Yes sir। Yes, sir. मतलब आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हो, दैट इज 4 pi r स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इफ यू वांट यू कैन राइट हियर आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। Yes, बच्चा sir. बराबर है? Yes Yes. sir। Yes, sir. बच्चा ऐसा भी कर सकते हैं ना हम लोग, लास्ट में जाके एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 के भी लिख सकते हैं, बराबर है? Yes, sir. ठीक है, वही करेंगे बच्चा, क्योंकि इधर बहुत सारा इक्वेशन बराबर नहीं है। तो इट इज 4 pi r स्क्वायर into sigma upon epsilon, that is equation number 1। is it okay बच्चा? Yes। Yes, sir. ठीक। अभी बच्चा ध्यान से सुनो, अभी मैं आउटसाइड द स्फीयर एक पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, पॉइंट मे बी इधर, राइट। अभी सेंटर O से ये जो पॉइंट है, लेट इट बी पॉइंट बी P है सपोज, तो P और O के बीच में जो डिस्टेंस है ना बच्चा, वो स्मॉल आ रहा है। बच्चा P और O के बीच में डिस्टेंस कितना है? Small r। Small. आपको अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है P पे, ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। इज इट ओके? Yes sir। Yes, sir. अभी रिकलेक्ट करो, थर्ड है विजुअलाइज ए गॉसियन सरफेस एंड जस्टिफाई इट, राइट। देखो अभी जो गॉसियन सरफेस आपको बनाना है, नंबर 1, बच्चा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इट शुड एनक्लोज द चार्ज। क्या बोला मैंने? Enclosing the charge. Enclosing the मतलब charge। वो चार्ज उसका अंदर होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है बच्चा? ठीक है। Yes sir। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट सुनो बच्चा, सेकेंड पॉइंट ये है, दिस पॉइंट P
मतलब जिधर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है दैट शुड बी ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस, मतलब ये पॉइंट गॉसियन सरफेस का सरफेस में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट समझ में आया सरफेस के ऊपर। बच्चा? देखो अभी मैंने विजुअलाइज किया एक स्फीयर, तो पॉइंट पी इसका सरफेस में होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, Yes, sir. सरफेस में होना चाहिए। यस सर, समझा सर समझा। बाकी का Yes, sir. चार्ज अंदर होएगा ना? चार्ज तो अंदर है ना बच्चा, मैं पॉइंट का बात कर रहा हूँ, पी का बात कर रहा हूँ। Yes, चार्ज sir. तो अंदर Yes, होना sir. चाहिए, चार्ज अंदर होना चाहिए, पॉइंट पी उसका गॉसियन सरफेस का सरफेस में होना चाहिए। आई होप यू गेटिंग। Yes, यस sir. सर, यस Yes, sir. समझा? सेकंड, दो पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, थर्ड पॉइंट ये है इफ पॉसिबल गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट में इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। Yes, इफ sir. पॉसिबल हर एक पॉइंट मतलब गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट में इंटेंसिटी क्या होना चाहिए बच्चा? सेम होना चाहिए। होना थर्ड पॉइंट है, Same. राइट? Yes. राइट बच्चा? हाँ। और फोर्थ पॉइंट, इफ पॉसिबल ये जो एंगल होता है, देखो जब मैंने लिखता हूं क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार, तो आपको पता है दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, TDS cos theta. राइट? इसका मतलब आपका ये थीटा जो है एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार है। DS bar. Yes. मतलब अभी थीटा का वैल्यू 0 है तो आप आराम से निकाल सकते हो, Maximum 90 है निकाल सकते हो, 180 है निकाल सकते हो, बराबर है ना? Yes. Yes. बट 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, निकाल सकते हो क्या बच्चा? नो नो। निकल रहेगा. हाँ, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब तुमने इरेगुलर सरफेस कंसिडर नहीं कर सकते हो, तुम वैसा कंसिडर करेगा एक तो एंगल 0 होना चाहिए, नहीं तो 90 होना चाहिए, बराबर है? यस सर। Yes, sir. भी नहीं मतलब होगा। ये चार सर इधर सिचुएशन। ये फिगर में बोलो। थीटा का इधर आएगा. क्या बोल रहे हो? ये सरफेस में थीटा कैसे आएगा इधर? वो देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो बात करेंगे हम लोग। बच्चा अभी 30 डिग्री आपको पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो मतलब ये चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, पॉइंट पी सरफेस में होना चाहिए। थर्ड, हर एक जगह इंटेंसिटी क्या होना चाहिए बच्चा? सेम Same होना चाहिए। Same तो होना चाहिए. बताइए गॉसियन सरफेस कौन सा फॉर्म में लेंगे आप? Sphere. ऑब्वियसली स्फीयर, क्योंकि स्फीयर लेंगे तो स्फीयर का सेंटर किधर होगा बच्चा? ओ पे होगा। O पे होगा. Yes. उसका Yes. रेडियस कितना होगा बच्चा? स्मॉल आर होगा, Small r. क्योंकि स्मॉल आर है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो पॉइंट पी सरफेस पे आएगा, सरफेस पे आएगा. यस सर। राइट? एंड ऑब्वियसली ये जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा, डोंट यू थिंक ये आपका चार्ज को एनक्लोज कर रहा है? नंबर Enclose वन, करेगा. Yes, Yes. sir. पॉइंट sir. पी ऑब्वियसली सरफेस पे आ रहा है, राइट? Yes. एंड थर्ड पॉइंट, डोंट थिंक हर एक पॉइंट में इंटेंसिटी क्या रहेगा बच्चा? सेम रहेगा। Same है. Yes. क्यों सेम है? क्योंकि हर एक पॉइंट इट इज एट सेम डिस्टेंस। आई होप यू Same गेट इट। distance. Yes. इज इट ओके? सबको समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. अभी क्या करेंगे बच्चा? पॉइंट पी का अक्रॉस एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे हम लोग। लेट द एरिया बी डीएस है, स्मॉल एरिया। क्या है एरिया बच्चा? डीएस। Yes. ठीक है, अभी आपको पता है आपका डीएस एरिया होता है एंड डीएस बार क्या होता है बच्चा? एरिया वेक्टर होता Area है। vector ये होता है. वेक्टर होता है। एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एरिया को परपेंडिकुलर होता है। Perpendicular होता है. Yes. तो अभी बताओ, इसका तो एरिया वेक्टर ऑब्वियसली आउटवर्ड्स Perpendicular रहेगा। रहेगा. Outwards. Yes. एरिया इधर है, स्मॉल एरिया है, मतलब दिस एरिया इज इन्फिनिट डेसिमली स्मॉल एरिया, मतलब स्मॉल 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 अप टू इंफिनिटी। समझ में आता है? Yes. मतलब एरिया इतना छोटा है, आप मान लो कि एरिया इतना छोटा है डीएस, इसका हर एक पॉइंट में इंटेंसिटी क्या रहेगा बच्चा? सेम रहेगा। Same रहेगा. Same रहेगा. तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि ये कितना छोटा हो सकता है, राइट? Yes. बच्चा इतना समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई तो बोला सर थीटा कैसा पता चलेगा? देखो डीएस का तो मिल गया डायरेक्शन। बच्चा ये चार्ज कौन सा है बताओ? आपको मेरे को बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive है. तो आपने 11th में पढ़ा है ना, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अवे। Away. Yes. Yes, yes. इसका मतलब ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किधर रहेगा बच्चा? अवे रहेगा। यस Away रहेगा. Yes. Yes. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. तो अभी बताओ ई बार डीएस बार का बीच में Zero. एंगल क्या है? 0 degree. डिग्री।
cos 0 क्या है बच्चा? वन अभी बताओ, इधर मैंने सपोज ds लिया इधर, तो ds और e के बीच में एंगल क्या है? 0। जीरो इधर 0, इधर 0, दोनों सब जगह थीटा का वैल्यू 0 है। मतलब हमारा चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक चार्ज को एनक्लोज कर रहे हैं, नंबर 1, पॉइंट पी सरफेस में है, नंबर 2, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सब जगह सेम है, नंबर 3, थीटा का वैल्यू 0 है, नंबर 4। यस और नो? यस सर। मतलब इन केस किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा, देखो सपोज मैंने इधर एक डीएस लिया, इधर राइट, इधर एक डीएस, लेट एरिया बी डीएस। ऑब्वियसली डीएस बार का डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चा? आउटवर्ड्स रहेगा, बराबर है ना? आउटवर्ड्स। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ डीएस बार, राइट? तो डिस्टेंस इधर आ रहा है तो इधर भी आ रहा है, बराबर है ना बच्चा? यस। अभी बताओ इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स। इधर इंटेंसिटी क्या रहेगा? आउटवर्ड्स, तो थीटा क्या रहेगा? 0। आई होप यू गेटिंग। जीरो। यस। सर चार्ज का तो 180 रहेगा ना? किधर 180 बच्चा? नेगेटिव पे। नेगेटिव हाँ, पे, क्या? नेगेटिव चार्ज पे 180 रहेगा ना सर? हाँ बच्चा 180 रहेगा, 180 रहेगा। सर मतलब तुमको पॉजिटिव ई पे का, 0 सर, हाँ हाँ पॉजिटिव पे 0, नेगेटिव पे 180, तो 90 डिग्री कब आएगा? आपने बोला था कि 90 180 अच्छा 90 मतलब बच्चा मेरे नेगेटिव को चार्ज पे। बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? मेरा पास ये नहीं है कि मेरे को थीटा भी आना चाहिए, 90 आना चाहिए, मेरे को ई मिलना चाहिए, वो मेरा इंपॉर्टेंट, राइट? यस सर, समझा। समझ में आ रहा है? तो मतलब Yes, सबको इधर, मतलब किसको किसको मौका दे रहा हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन ई का वैल्यू कैलकुलेट करने में इजी दे रहा है, उससे लेना है मेरे को, राइट? यस सर। यस फाइन बच्चा, सबको समझ में आया इधर तक? यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये जो छोटा सा डीएस है ना, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। छोटा सा ये जो डीएस है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, राइट? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर तो 90 किसके केस में आएगा? बच्चा 90 भी आएगा, वो ये केस में तो नहीं आएगा। इज इट ओके? ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहे हो कि आ नहीं सकता है, आ सकता है, क्योंकि 90 आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि cos 90 तो 0, तो फ्लक्स ही 0 हो जाएगा, यस। राइट? बट इधर मैं 90 करूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, तो मतलब मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। आई होप यू गेटिंग। यस यस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ds, राइट? इसका बात कर रहा हूं, इज गिवन बाय बच्चे, ये जो एरिया ds है, बड़ा है कि छोटा है बच्चा? स्मॉल एरिया। तो ऑब्वियस है कि फ्लक्स भी स्मॉल होगा, यस। इसके लिए मैंने d फाई लिखा है, d5। राइट? तो इट इज e बार डॉट ds बार आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि एरिया तो ds फिक्स्ड है, बराबर है बच्चा? यस मैं एक छोटा सा एरिया लिया हूं तो ऑब्वियसली मेरे को एरिया पता है, तो इंटीग्रेशन का टर्म नहीं आएगा। तो दिस इज e ds cos theta, cos right? theta। यस। And you know that the value of theta is, बोलो बोलो जल्दी बोलो, theta is 0 and what is cos 0? 1. इक्वेशन मेरे को मिलेगा d phi is equal to eds. Is it okay? यस। बट बच्चा मेरे को ये फ्लक्स चाहिए कि पूरा फ्लक्स चाहिए? पूरा चाहिए, पूरा फ्लक्स चाहिए। तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, yes or no? इंटीग्रेशन। यस। So total electric flux over flux through Gaussian surface या closed surface, Gaussian surface, right? Surface is given by, obviously मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, yes or no? यस। I will write phi is equal to closed integral of d phi, that will be equal to closed integral, what is the value of d phi बच्चा? eds. Is it okay? बच्चा अभी देखो, इंटीग्रेशन eds, e सब जगह सेम है तो बाहर आ जाएगा। तो अब ये समझ में आ रहा है मैं आपको क्यों बोल रहा था e सेम रहेगा तो अच्छा रहेगा,
right? Yes, yes sir. sir, concentrate तो कर रहा हूँ. So it is integration closed ds. अभी मेरे को बताओ, ये पूरा स्पीयर में बहुत सारा ds होगा, नो डाउट. अभी हर एक ds को मैंने ऐड किया, डोंट थिंक मेरे को पूरा स्पीयर का, गॉसियन स्पीयर का Surface सरफेस area. एरिया मिलेगा, yes or no? Yes. 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 And what 4 will pi be that r area? square. 4 pi pi small r square. Square. Equation number 2. 2. Yes. बच्चे, we have reached up to point number 4, yes or no? Yes. Yes. अभी point number 5 क्या है बच्चे? इक्वेट करना, वो तो इजी है. Equate 1 and 2. Exactly, equate 1 and 2. Equation number 1 and 2. बोलो बच्चा क्या मिलेगा? पहले ये लिख लेता हूं मैं. Flux will be equal to Q enclosed upon epsilon 0. Yes or no? Not epsilon 0. it is Yes. Epsilon. epsilon. अभी फ्लक्स का बदले में ये डाल देंगे, E in bracket 4 pi r square. I hope you getting is equal to, इसका बदले में ये डाल देंगे, that is 4 pi r square sigma upon epsilon. Epsilon. Is it okay? Yes, sir. Yes sir. Yes. तो बच्चा 4 pi गायब, राइट? ये छोटा सा r स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो डोंट थिंक यू विल गेट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, राइट? r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ठीक से देख लो बच्चा, Yes. Yes sir. which can be written as E is equal to sigma upon epsilon 0 k r square upon r square. So this will be the formula for electric intensity at point P, right? Yes. Yes, sir. Yes अभी sir. मेरे को बताओ बच्चा, वो जो हम लोग ने मेथड डिस्कस किया, डोंट यू थिंक इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डोंट यू थिंक आपका गॉसियन सरफेस का मेथड भी क्लियर हो गया? Yes sir. Yes. Yes. अभी इसका थोड़ा बहुत डिफरेंट फॉर्म है, दैट वी विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर. इज इट ओके? सो ये कंप्लीट कर लो बच्चा. सर क्यूब कब कंसीडर करना है गॉसियन सरफेस? बच्चे देखो, क्यूब किधर कंसीडर करना है, देखो जिधर तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो हर एक एरिया का, राइट? तो यस सर. आप वैसा लेंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि क्यूब ही लेना है, राइट? यस सर, समझा. मतलब ऐसा नहीं कि चलो ये फर्स्ट मेथड में हम लोग ने स्फीयर लिया, नेक्स्ट टाइम क्यूब को देना चाहिए चांस, वैसा नहीं है. जो तुम्हारा बेनिफिशियल में है, जो तुमको कम स्टेप में आंसर देगा, उसको यूज करेंगे, यस सर. राइट? यस यस. सर अगर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज रहेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म है तो तुम मतलब ट्रैप्ड है, तुम कुछ नहीं कर सकता. छोटा एरिया लो, उसका कैलकुलेट करो, और एक एरिया लो, उसका देन ऐड करना पड़ेगा. मतलब इट इज लाइक यू नो डीएस. कितना डीएस बन सकता है बताओ ये स्फीयर का? इंफिनिटी. Infinity. तो मतलब यू विल बी डूइंग कैलकुलेशन फॉर योर यू नो एंटायर लाइफ. यस सर, समझा. हाँ, मतलब मैंने बोला था, आपको याद है बच्चा, लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन किया था. तो आपने सबने बोला था चार्ज यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी हम लोग को डील करने में इजी होगा, यस सर, समझा. राइट? यस सर. सर या सर क्लोज इंटीग्रली क्यों कंसीडर किया, नॉर्मल इंटीग्रेशन लेते तो? बच्चा क्योंकि सरफेस क्लोज्ड है ना, इसके लिए क्लोज किया है. इनकेस आप क्लोज नहीं लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लोज्ड लिखने से क्या होता है, दूसरा जो साइड है उसको पता चलता है कि आपने जो इंटीग्रेशन करने वाला जो सिस्टम है वो क्लोज्ड है, राइट? बच्चा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. मतलब मैं ये बोल रहा हूं, सपोज आपने इंटीग्रेशन ही लिखा तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, राइट? क्योंकि बट इससे कुछ पता नहीं चलेगा कि वो सरफेस प्लेन है कि क्लोज्ड है, बट ऐसा लिखा तो क्लोज्ड पता चलता है, राइट? बराबर है ना बच्चा? सर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच का डिफरेंस क्या, जरा बता सकते? बच्चे एप्सिलॉन क्या है? वो परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम है. एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम है, राइट? एंड एप्सिलॉन 0 जो है वो परमिटिविटी ऑफ गिवन फ्री स्पेस है, राइट?
एंड इन दोनों का जो इन दोनों को कनेक्ट करता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। तो आई थिंक ये हम लोग ने 11th में अच्छे से डिस्कस किया था, बराबर है ना बच्चा? यस तो मतलब k is equal to epsilon upon epsilon 0, then k is equal to fa upon fm, फोर्स का टर्म्स में भी हम लोग लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट? Yes, sir. यस सर बच्चा आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हो, इफ इट इज ओके। यस सर यस सर तो आप Sir. स्क्रीन, हाँ बोलो। अगर